evolved yogi who has been coming to Vrindavan for many years and people don't know about him. और तुम्हारा संकल्प जल के द्वारा मेरे बंगाल तक जाएगा और वो किसी न किसी दिन फलीभूत हो जाएगा। ये तुमसे होगा भी नहीं, अकेले तुम लोग से होगा नहीं, हमें आना ही पड़ेगा। हमारी शक्तियां ले लो, हमारे साथ मन को जोड़ो और जैसा हम बताते हैं वैसा करो। अपने हाथ से स्केच करके गए अखंड भारत का और जिसके ऊपर लिखा था वंदे मातरम। आज का दिन अति विशेष है क्योंकि हमारी जो पुस्तक है बुक 4 of 7 विजडम मस्ट बी गेन्ड, तो उसका चैप्टर 2 हम पिकअप करेंगे। और ये एक्चुअली तीन भागों में बटा हुआ है। दिस इज इन 3 पार्ट्स। एक हमने दिल्ली में भी एक सेशन लिया था और अभी पार्ट 2 है और पार्ट 3 आज शाम को होगा। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारे पोस्ट्स को या आर्टिकल्स को या बुक्स को पढ़ रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसको आज के सत्संग को या डिस्कोर्स को उसको अकेले में, डोंट सी इट इन आइसोलेशन। एंड दिस इज़ अ वेरी exclusive session. The reason is that though the book primarily deals with Adi Shankaracharya, there is a very beautiful chapter 2, Swami Keshwananda, the fiery yogi, a revolutionary and a freedom fighter. So we are only going to take up that part, and I wish to tell the world that it is now the time for the world to rethink and plan its future. People who have never heard or will hear this discourse in future, there are 2 things I wish to tell them. First is that please keep your mind very open and expanded, because as the discourse takes place, we are going to open many new vistas, many unheard facts, and also the truth lying behind these facts. So the first principle which I wanted to discuss previously in Delhi was, and which will be taken up again and again, is that this whole universe, this ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है इसमें गुंजन होती है. This whole universe takes our thoughts, our intentions, our every sankalp, and with time it starts resonating. And India being a spiritual country, it has many rishis, munis who have come here and gone, and the world doesn't know. So one of the objectives of my books is to share those yogis and ancient rishis with the world, so that they give due respect to the place where they belong. They belong to the most venerated, the most illustrious, the most glorious part of our history.
But with the evolution of Earth and the changes that have happened, sudden drastic changes that have happened in the society, the rishis, the sages, the tapasvis, they have been relegated in the background. People have not heard about this fiery yogi, a revolutionary, a freedom fighter, and also great tapasvi. His name was Swami Keshwananda, and a very brief description is given in Autobiography of a Yogi. And I wish to involve many future readers into this dialogue or this conversation or a discourse, whatever you would like to say, because in the end, if you have any questions, I'll answer. So I'm trying to integrate today's and future readers of my blog as well as books and also the viewers of the videos. The sole intention of coming to Vrindavan is a very famous Tirath of Hindus, we all know it. And Mathura is the birthplace of Krishna. But there was a very evolved yogi who has been coming to Vrindavan for many, many years, and people don't know about him. And his ashram is here only in Katyayani Peeth. So, who was Swami Keshwananda? Swami Keshwananda was born the first time in Murshidabad in Bengal, and his birth was more than 1 crore years ago. Just a few lines for those who have never heard about him, that he was born in Bengal the first time, and he has taken 58 lives in Bengal. And he's also the first human being to get pranayam, but the pranayam he got was in Vrindavan in his second life. So in his first life, he saw death of 3 or probably 4 of 3, I'm very sure, maybe more, deaths in the family because of natural calamities. So he took a vow that he will never be a householder because he doesn't want to be separated from his parents, from his sister, brother, or whoever. And he'll always consider Bharat, the Vishwa. Yani, if I put it differently, now we will go to the next step, and the next step is कि जो भारत है वो सदा से आध्यात्मिक शक्ति रहा है. तो ये शक्ति कैसे बनी, जो आज सबका मन करता है कि हम भारत को उसकी खोई हुई गरिमा, खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति हम वापस लाएं, तो वो कैसे होगा. सो कुछ तरीके और भी हैं जो मुझे पता है, वॉट एवर आई नो, आई कैन टेल यू दैट, कि जो आध्यात्मिक शक्ति है या विश्व गुरु है, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों लोग बोलते हैं, या पुराणों वेदों को छोड़ दें. अगर हम एक बार वो जो उनसे परिचित नहीं है, तो अगर एक साधारण आदमी मेरे से पूछे या मैं पूछूं भगवान से कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, सो ये सब ऋषि मुनि ने मुझे बताया कि विश्व गुरु का मतलब, विश्व गुरु मीन्स कि ये किसी, वी आर नॉट हियर, हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे सुपीरियर हैं या हम किसी को दबाएंगे. ये पॉलिटिक्स को और इस तरह की जो गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं सबसे पहले उसको अलग करना चाहूँगी कि वो हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है. मेरा मकसद केवल सत्य बताना है. मेरा काम है, मैंने सत्य जाना, मैं सबको सत्य बताऊँगी. सत्य ये है कि जब पृथ्वी बनी है तो
परमात्मा ने इसे बहुत प्रेम से बनाया, बहुत शांति से बनाया, बहुत अपने जैसे कहते हैं अपने जैसा ही बनाया है। यानी पृथ्वी, फिर पृथ्वी पे आए हुए जितने भी जीव प्राणी हैं, उन सब के लिए बहुत प्रेम, बहुत शांति, एक दूसरे के लिए करुणा, एक दूसरे के लिए सद्भावना, ये सिद्धांतों पे बनाई है। तो केवल बनाने से नहीं हुआ है। कुछ लोग जो आके पहले चले गए, उन्होंने इस धरती को इतने अच्छे से रहा है, या कहें कि भाई भारत विश्व गुरु क्यों था और कैसे बना सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है इसमें। क्योंकि केशवानंद जी का आगे जाके इसमें अभी भी रोल है, पहले भी था, अभी भी है। तो वो सबसे पहले प्राणी थे जिन्होंने भगवान से ये मांगा कि ये पूरा विश्व मेरा है, यानी ये धरती सबकी है और पूरी धरती मेरी है। यानी उन्होंने पहले ही जन्म में जो एक सेपरेशन होता, एक अहंकार होता है, जो लोग बोलते हैं नहीं हम अलग हैं, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, बाकी लोग सब अलग हैं, ये उनको बहुत जल्दी रियलाइजेशन हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये स्थापना रख दी कि हम पूरा विश्व हमारा है, यानी हम एक दूसरे से आत्मा से प्रेम से जुड़े हुए। तो उनको हमें ये श्रेय देना चाहिए, इतनी महान आत्मा जो पहले जन्म में ये समझ ले। और एक बहुत प्यारा इनका एक जीवन, अगला जीवन वृंदावन में था। वृंदावन तब जंगल था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जन्मभूमि तो अब बहुत अभी की बात है। अगर हम 1 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं तो 5,000 साल, 3,000 साल, 10,000 साल मायने नहीं रखते हैं। तो एक यानी सेकेंड लाइफ, दूसरे जन्म में उनका जन्म इधर वृंदावन में ही था। और वो बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत के पास ही था। तो समझ आता है कि उस ज़माने में लोग कुछ कर नहीं सकते थे, व्यवसाय नहीं होता था, तो वो शेपर्ड, गाय चराते थे। तो एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, उनका मन बहुत शांत हुआ। और मतलब मुझे अब शायद वो 2 मिनट के अंदर ही मेरे इतने गहरा ध्यान लग गया कि मुझे ऐसे बोलने में तकलीफ हो रही है, बट इतना उनकी बात में पावर है। वो भारत के लिए, देश के लिए लड़े, और पहले फ्रीडम फाइटर, यानी जिन्होंने संग्राम किया अंग्रेज़ों और मुसलमानों के अगेंस्ट। वो तो बहुत लेटेस्ट बात है उनकी। तो जब वो दूसरे जन्म में वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक दिन ऐसे कोई जैसे होता है गाय चर रही है और वो बैठे थे, तो उनका ध्यान ऐसे लग गया। जैसे अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसमें से निकलूँगी अभी। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी आँख ऐसे मूंद मतलब बंद हो गई, और उनका मन अनजाने में ईश्वर से जुड़ गया। उनको नहीं पता था वो क्या हो गया उनके साथ, पर वो ठंडी, जैसे बताते हैं कि मैं बहुत तृप्त हो गया, बहुत शांत हो गया, मैं बैठ गया। और उनको पता नहीं था कि उनकी श्वास किस तरह चल रही है। तो उन्हें अंदर से आवाज़, यानी परमात्मा ने अंदर से दर्शन दिया उन्हें, और उनको कहा कि देखो, तुम्हारी श्वास को देखो, वॉच योर ब्रेथ। और जो उनकी सांस थी वो दोनों एक ही नाप की थी, यानी जो वो जिसको हम पूरक और रेचक बोलते हैं, और वो जो सांस ले रहे थे और सांस छोड़ रहे थे, उसकी लंबाई एक ही थी। जैसे ली और छोड़ी, तो दोनों का समय एक ही था। तो उनको अंदर से परमात्मा ने बोध कराया कि जब भी तुम्हारा श्वास लंबाई में, और यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेचक पूरक में एक हो जाएगा, तुम इस अवस्था में आ जाओगे। और इस अवस्था को कुंभक भी बोलते हैं, समाधि भी बोलते हैं। तो
तुम ये किया करो। यानी एक है कि अकस्मात हो गया और एक है कि आप अपने आप करते। और ये जो श्वास है इसको हमें बांध लेना चाहिए समय समय पर। मतलब जो श्वास है वो हमारे विचारों से जुड़ी हुई है। अगर हमारे विचार तेज चलेंगे तो श्वास भी तेज चलेगी। और अगर हमने अपने विचारों को साक्षी बनाया या उसको देखा तो वो विचार धीरे धीरे विलीन हो जाते और जो श्वास है वो अपने आप घट जाती है। तो ये अभी आप सोचो 1 करोड़ वर्ष पहले किसी का ये अनुभव है जिनको हम योगी, तपस्वी, महान आत्मा, पुण्यात्मा बोलते हैं। तो भारत में ये योग प्राणायाम इतना पुराना है जो पूरा विश्व जानता है। ये विश्व गुरु बनने के लिए हम कह सकते हैं कि भारत अग्रणी है, आगे रहेगा। इसलिए रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ये मुझे स्वयं परमात्मा ने बताया कि कोई भी देश, कोई भी स्थान, कोई भी संस्कृति, कोई भी, जिसको हम रेस एंड सिविलाइजेशन बोलते हैं, या कोई भी कंट्री, उनकी कम से कम मिनिमम 13 जेनरेशन्स, पीढ़ियाँ लगातार एक तो पाप न करें और अपनी श्वास को अपने संयम में रखें। अगर ये 13 पीढ़ियाँ कर लेती हैं तो वो देश विश्वगुरु बनता है। ये कभी किसी ने इसकी परिभाषा ही नहीं सुनी होगी। एक कंडीशन ये है। तो भारत में 1 करोड़ वर्ष से पहले मनु ने आके प्रकृति को अपना, जैसे कहते हैं ना, प्रेम दिया और प्रकृति से प्रेम लिया और कहा मुझे तो यही ईश्वर, प्रकृति ईश्वर लगते, क्योंकि ईश्वर ने रचना कितनी सुंदर की। तो ये भी एक ईंट, एक स्थापना एक ऋषि ने कर दी। तो मनुस्मृति जिसने लिखा, मनु की 23 पीढ़ियाँ प्रकृति के प्रति आदर और जिसको बोलते हैं ऐसा कोई इच्छा नहीं की, ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कुछ ईश्वर के विरुद्ध कुछ काम नहीं किया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो हम मनु को भी बोलेंगे। अब हम वापस जाते हैं केशवानंद जी के बाद के भी विश्व, ऐसे कई ऋषि हैं जिन्होंने शुरू में ही इस तरह के बहुत सारे काम किए। तो उनके बाद उनके जो पीढ़ियाँ आई तो उन्होंने एक के बाद एक ईंट रखते गए। इसलिए भारत विश्व गुरु था और दोबारा बन जाएगा। इसमें समय है। तो जो यानी जो उनकी बात बता रही थी केशवानंद जी की, तो परमात्मा ने उन्हें दूसरे ही जन्म में, पहला जन्म उनका बंगाल में मुर्शिदाबाद में, सेकंड उनका वृंदावन में, इधर ही हुआ। तो क्योंकि उनका विचार इतना विशुद्ध था तो भगवान ने उनको अगले जन्म में योग साधना की प्रस्तावना डाल दी। यानी वो तब से आज तक, अब आप हिसाब लगा लीजिए, उन्होंने हमेशा संन्यास लिया। संन्यास का मतलब विरक्त नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी से वो करते थे, बट उन्होंने सबको अपना ही माना। बस इस तरह हम समझ सकते हैं। सो जो कुंभक है, अब इस पे थोड़ी सी बात बताऊंगी क्योंकि इनका कैरेक्टर या चरित्र इतना बड़ा है कि बहुत कठिनाई हो रही है कि मैं किस पे बोलूं और किस पे ज़्यादा बोलूं। उनको पहली बार, अगर मैं कहूँ कि मैं पहली बार उनको प्रकट कर रही हूँ, पहली बार उनके लिए कुछ कह के हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो समस्या यही है कि किस चीज़ पे मैं बोलूं, और बोलने के लिए इतना कुछ है। तो हम उनको सबसे पहले वो स्थान दें जिसके वे
जिसके वे अधिकारी हैं। और जैसे 1-2 दिन से बात चल रही है कि हम सबको, आपको, मुझे, सबको लगता है, और ये हम देख रहे हैं कि कैसे-कैसे लोगों को नाम, यश, कीर्ति मिल रही है, चाहे वो है भी नहीं जो वो दिखा रहे, और जो इतने महान कार्य करके चले गए, मैं भारत की बात कर रही हूँ अभी, उनको हम लोग जानने की इच्छा ही नहीं करते। तो आज आपको, मुझे, पूरी दुनिया को रास्ता कौन दिखाएगा? तो अभी ईश्वर ने ये समय ऐसा दिया है हमारे लिए कि जो जो महान पुण्य आत्माएं आके चली गई हैं, जिनको कोई लक्ष्य भी नहीं था, न इच्छा थी कि वो दुनिया में उनको कोई जाने, अब उनका समय है। क्योंकि बाकी तो झूठे तो बहुत सभी देख रहे हैं कि बिना बात के नाम होता है उनका। तो मेरी खुद की अपनी इच्छा है कि मुझे ना जाने, उनको जाने। ये माध्यम बन गई हूँ उनका, एक चैनल बन गई हूँ मैं। पर दुनिया की जितनी भी कीर्ति, जितना भी यश, जितना भी नाम, जितनी भी, जैसे कहते हैं ना, वो इतने आराध्य हैं कि सारा विश्व उनको जाने, सारा विश्व उनको जाने, क्योंकि हम सब भटक गए। ऐसा लगता है किसी को न जीना आ रहा है, किसी को सोचना नहीं आता, किसी को पता नहीं क्या खाना खाना है, क्या करना है, अभी पहले क्या किया, भविष्य में कैसा जीवन बनाना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो वापस से उसी विषय पे जाते हैं कि एक मैंने 1-2 दिन से बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, पर उनको कहा गया तुम 20 साल तक इसका इंतज़ार करो, ये अभी कुछ और शिक्षा ले रही है, ये अभी आएगी। ये मेरी बात कर रही हूँ। यानी केशवानंद जी मेरी सारे जन्मों की यात्रा देख रहे थे। फिर जो वो बताते हैं कि 2022 में उन्होंने अपने पिताजी मार्कंडेय, जो उनके पिताजी थे, उनसे कहा कि आप यानी मेरे लिए, इस स्त्री के लिए आप इतनी खास जगह क्यों रखते हैं? तो मार्कंडेय जी ने बताया, देखो इसने कैसे आज्ञा का पालन किया है, और देखो इससे भगवान कोई बहुत बड़ा काम भी कराएंगे, पर तुम इसका इंतज़ार करो। तो पिछले साल उन्होंने मुझे बुलाया, अचानक आए, और पता भी नहीं था क्यों आ रहे, और वो 26 फरवरी थी, शिवरात्रि महाकुंभ खत्म हुआ। तो हम आए, बस बहुत ही विशेष जगह दिखी, समझ आई, पर समय नहीं दिया। और उन्होंने फिर बोला अगले साल बुलाऊंगा। तो मुझे लगा अगले साल कभी भी हो सकता। तो पूरे 365 दिन बाद आज 26 फरवरी है, और मैं इधर हूँ। और इसी बीच में हमने किताब लिखी है, जिसमें केशवानंद जी का इतना प्यारा, जिसको बोलते विवरण है। उन्होंने मुझे अपनी 1 साल में इतनी सारी बातें जीवन की बताई। He has told me so many things about his own personal things. तो उसमें जो एक निजी बात है, ये उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि ये विशेष क्यों है। तो जब उनके पिताजी ने एक सार्थक उत्तर दिया, जवाब, एक बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई दिया, तो उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने देखा कि एक ये स्त्री है, बार बार हिमालय में आती है, गुरु की खोज करती है, और ये तो योग, प्राणायाम, योग साधना सबकी परिभाषा ही बदल रही है। मतलब कुछ नया सीख रही है, और आज के ज़माने के जैसा, यानी हमारा जो ज्योति मार्ग का जो योग साधना है, वो आज के हिसाब से है, यानी जो हम आज कर सकते, इसमें थोड़ा बदलाव है। यानी पहले सब सन्यासी थे या जंगलों में जाते थे, ये सब, तो आज के हिसाब से। तो ऐसे ही हम समझें कि
जो कुंभक है, जो जो इतना मैंने कोशिश किया कि कोई मुझे बताता ही नहीं था कि प्राणायाम हम कर रहे हैं, बस सांस रोक लो, तो वो कुंभक होता है। सांस नहीं रोको तो श्वास है, ऐसा कुछ कुछ भी बोलते थे। तो ये बहुत ये श्रेय मैं केशवानंद जी को ज़्यादा देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जब ये मुझे अपनी जीवन की एक बात बताई कि कैसे में एक ऑर्डिनरी बात है, बहुत ऑर्डिनरी है, पर इसमें हमें अंदर जाना चाहिए। वो कह रहे थे, मैं ऐसे पेड़ पर के नीचे बैठा, थक गया था, हवा आई, ऐसे हुआ, मुझे ईश्वर ने दर्शन दिए, कहा ये इस करो, इसका नाम अनुबंधित श्वास क्रिया है। अपने श्वास को हमेशा ऐसे ऐसे मत चलाना, आराम से धीरे धीरे चलाना, और बीच में ये रुक जाएगी, उसको कुंभक बोलते हैं। दरअसल कुंभक क्या है, यानी ये अवस्था उनकी थी, ये मैं अपनी नहीं कह रही, मैं उनकी बात बता रही। कुंभक का मतलब ये होता है कि एक तो विचारों से मन कट जाता है, वी आर डिसएसोसिएटेड विद द वर्ल्ड, हम अलग अलग हो जाते हैं। और जो सारा प्राण है, यानी जो विचारों में प्राण चल रहा था, वो सारा का सारा प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, मोस्ट ऑफ इट, और मैक्सिमम प्राण ब्रेन में चला जाता है। क्योंकि गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के जो मोमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो है कुंभक। कुंभक मतलब लाइक अ मटका, लाइक अ पॉट। तो केशवानंद जी जैसे के कुंभक की अवस्था बहुत विशाल है। मैं ये कह रही कि जैसे एक है कि किसी को, बहुतों को ये अनुभव होता है, थोड़ी देर के लिए हम विश्व से, संसार से पूरे विमुक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ होते, पर वो गए और नीचे आ जाते। फिर कोई और होता है, वो थोड़ी देर और जाता है। तो वो जो हमने कल देखा मंदिर के अंदर, जो उनकी पुरानी चीज़ें देखी, और मालूम है कि वो रात रात बैठ के ध्यानस्थ रहते थे, तो वो बहुत बड़ी स्टेट ऑफ माइंड है, यानी इनकी कैपेसिटी, क्योंकि 1 करोड़ वर्ष से जो ऐसा करेगा, तो वो फिर बहुत लंबी देर तक अपने ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन रख लेगा, और वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है माइंड में, जिसमें थॉट्स का राइजिंग और फॉलिंग बंद हो जाता है। आई होप आई एम नाउ मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, यू गॉट इट, आई थिंक, राइट? हाँ। सो यानी उनको गॉड कम्युनियन इतने टाइम, मैक्सिमम टाइम के लिए चाहिए, तो वो दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और भगवान उनको, परमात्मा ये स्टेट क्यों देते हैं? पुण्य के बहुत अच्छी आत्मा है, क्योंकि उनका काम परमात्मा से पड़ता है। वो विश्व के लिए जो अच्छा काम करते, अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो ताकत कहाँ से आएगी? तो उनका ये रूट होता है, यानी वो फिजिकल बॉडी में ज़्यादा नहीं रहते, फिजिकल एनर्जी से उनसे इतना ताल्लुक नहीं होता, तभी वो फास्टिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मौन रख लेते हैं। तो उनके जो क्राउन चक्र है, जो ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रह्मरंध्र में आती है, वो फ्लॉलेस होती है, वो मिस्टेक नहीं करती, कोई भी उनसे कभी गलती नहीं होती है। तो ये मैंने प्रस्तावना इसलिए रखी क्योंकि न केवल वो उस अवस्था में होते हैं, अभी भी होते हैं, क्योंकि शरीर नहीं है, पर वो हैं। और सब ऋषि ने को मेरा, जैसे कहते हैं ना, कोटि कोटि प्रणाम है, मैं सबको श्रेय देती हूँ। पर अभी मैं सिर्फ खास और खास केशवानंद जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सब उन्हीं को ही अर्पित है। तो मेरी भी अवस्था उन्होंने इतनी बढ़ा दी ताकि मैं उनको जान सकूं, और हम दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, और जिससे मैं जान सकूं वो कौन थे। क्योंकि दुनिया में वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई जाने, पर अब उनका समय। तो ये एक बैकग्राउंड है। और सुदर्शन क्रिया भी उन्होंने ही सबसे पहले विश्व में ली और दी है, लोगों को दी है, और वो उनसे पता नहीं अथाह काम हुआ है, डेप्थलेस यानी लिमिटलेस काम हुआ है। तो अब ये एक मेरा एक ऑन द स्पॉट, अगर मैं सोचूं कि मुझे
उनका बेस्ट इंट्रोडक्शन देना है तो मेरे हिसाब से ये उनका इंट्रोडक्शन है कि उनको हमें वो टाइटल देना चाहिए कि जिन्होंने अपने दूसरे जन्म में भगवान को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लिया। क्योंकि बाद में तो लोग तकलीफ पाते हैं, संसार में आते हैं, दुख पाते हैं, दे आर सो टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर वो कहते हैं अच्छा भगवान अब तो आ जा। वो तो उनके पास चॉइस नहीं होती तो जाते हैं। ये वो आत्माएं जिन्होंने स्वयं कहा कि नहीं मुझे तो बस ये, यानी जो हमारा कल रात को डिस्कशन था या सॉरी मॉर्निंग सुबह का था दोपहर का, कि कुछ आत्माएं क्यों इधर चली जाती हैं, यानी भगवान की तरफ वापस नहीं, वो जाती ही नहीं, संसार में ही नहीं जाती। क्यों नहीं जाती हैं? ये कारण होता है, उनके बड़े शुभ विचार होते हैं। और यही मैं केशवानंद जी के लिए कह सकती हूँ कि उनका पहला जन्म ही इतना प्यारा था, दूसरा इतना अच्छा हो गया, और उन्होंने भारत में एक इतनी बड़ी फाउंडेशन डाल दी है जो भारत का परिचय या पहचान ही योग प्राणायाम है। अब इसको योगा बोल रहे हैं या आसन में जो भी मिक्सिंग कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट वो जो प्योर फॉर्म है, आसन भी बाद में डाले गए ताकि शरीर भी अच्छा रहे तो योग लग जाए। और योग क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ईश्वर का ही जैसे हम एक अंश हैं, तो वो परम शांति की अवस्था। तो ये एक छोटा सा मैंने कोशिश की है कि मैं अगर विश्व में किसी को बताऊं कि ये कौन थे, क्योंकि बाकी तो थोड़ा थोड़ा सबको पता है कि वो यहाँ आए, उनका नाम ये था, उनके शिष्य ये थे, वो तो काफ़ी लोगों को पता है। पर अगर जो मुझे पहले दिन से शौक है कि मैं इनके अंदर जाके देखूं कि ये कौन थे, क्योंकि नया जन्म मिलेगा तो नया नाम मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। पर ये अगर पीछे से मैं देखूं तो ये हर जन्म में क्या करते हैं, इनकी प्राप्ति क्या है, मैं इनसे क्या सीखूं, या मेरा उद्धार कैसे हो जाए। तो ये एक जो मुझे अभी अचानक समझ आया कि मैं बड़ा कठिन है कि कोई मुझे कहे स्वामी केशवानंद जी के बारे में आप क्या जानती हैं, क्योंकि मैं वो जानती हूँ जो कोई नहीं जानता, और जो सब जानते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैंने केशवानंद जी को एक वो शूरवीर थे, बहुत ब्रेव थे, करेजियस थे। वो चैप्टर तो मैंने बाद में समझा। जो सबसे पहले मैंने समझा है कि किस में इतना करेज होता है कि डरे भी नहीं, और अपने एक लक्ष्य ध्येय के लिए। तो एक ये इनका बहुत बढ़िया एक इसको बोलते हैं एक लाइफ स्टोरी है कि इनकी जो परमानेंटली एक कभी नहीं भूल सकती मैं कि दूसरे जन्म में इनको भगवान ने समाधि, कुंभक और ये सब दे दिया। सो वो बहुत बढ़िया। और एक इनका जीवन वो जो बहुत सुंदर है, मतलब ये होए कि ये योगी थे तो मैंने उनके योग की महान शक्ति के बारे में बता दिया, क्योंकि कल हम सब ने मंदिर में जाके जहाँ वो रहते थे वो देखा, तो कौन विश्वास करेगा कि हमारा इतना अच्छा भाग्य कि हमने उनकी चीज़ें देख ली, कहाँ वो रात को बैठते थे, कैसे जिए, कैसे वो नदी किनारे बैठे थे, या कैसे वो अपना समय बिताते, कैसा चरित्र होगा, क्या करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, हवन यज्ञ करते होंगे, और अंदर क्या था उनके, यानी बाहर का तो एक है भाई, जो गुरु है वो बार बार गुरु ही बन के आएंगे, और तो क्या होगा उनसे, और क्या काम भगवान भी कराएंगे। तो वो जो आपने कल देखा, तो वो आपने उनका लास्ट, यानी इसके बाद उन्होंने जन्म नहीं लिया, आपने उनका अभी अभी जो जन्म हुआ है वो देखा, द लास्ट, अभी यानी रीसेंट। पर उनके पहले सेकंड, पहला दूसरा जन्म भी इतना महान था। अब हम आ जाते हैं कि वो ये योगी थे, और वो क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर, यानी देश के लिए कैसे हो गया, वाई इज ही कॉल्ड दैट। अब ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं आ रही थी इधर तो
2-3 महीने पहले मुझे अचानक बोले कि वृंदावन आओगी, मथुरा भी जाओगी, तो सीधा मंदिर मत जाना, मेरे पास आना, यमुना किनारे बैठो। तो एक बार लगा इनका कोई कनेक्शन था, तो बोले नहीं, तुम सब आओ और ध्यान करो और तुम सब संकल्प लो कि मेरा बंगाल अच्छा हो जाए। तो अब ये उनका एसोसिएशन विद बंगाल, यानी पहला जन्म भी बंगाल था, अब हम उनका लास्ट जन्म भी बंगाल में था और उनके 8 जन्म वृंदावन में थे। तो अब वो इसका मतलब क्या है कि ये जो नदी है यमुना, वो चलते चलते जाके सब पानी नदियों से मिल जाएगा और फिर वो महासागर यानी गंगा सागर बन जाएगी। कलकत्ते में एंड में जाके सब नदियों का पानी मिलके सागर में, तो वो जो गंगोत्री से चल के सब नदियाँ मिलके, तो वो जो लास्ट पॉइंट है, जो डेल्टा पॉइंट है, उसको गंगा सागर बोलते हैं। तो वो बोले जो मैंने पहली बात बोली कि ये जो विश्व है ये गूंजता है, तो उनका कहने का मतलब है, यानी जो हम कल करने वाले हैं, टुमारो विल डू इट, कि तुम जो संकल्प लोगी तो नदी और पानी ये सुन लेंगे और तुम्हारा संकल्प जल के द्वारा मेरे बंगाल तक जाएगा और वो किसी न किसी दिन फलीभूत हो जाएगा। वो बहुत सुंदर बात हो, बहुत सुंदर बात है। और वो संकल्प क्या है कि मेरे बंगाल को अच्छा कर दो। तो जो इतना महारथी हो, जो कुछ भी मांगे तो भगवान दे दे, वो चाहे तो धरती को हिला दे, वो चाहे तो किसी जंगल में आग लगा दे अपने विचारों से, केवल योग तप से, तो वो हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? सोचो। तो फिर मैंने कहा नहीं, आपने कहा है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप मुझे एक मौका दे रहे कि मेरे हाथों से, मेरे मन से एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाए। तो हम ये करेंगे और हम सारा कार्यक्रम बदल देंगे, हम जाएंगे, सब जाएंगे। तो अब इनका बंगाल से क्या मतलब है? एक है हम कल्चरली रेसरेक्ट करें, यानी हम इसकी संस्कृति को उठाएं, यानी बंगाल मतलब भारत, क्योंकि सबसे पहले जो भारत को मुक्त करने का या फ्री करने का फ्रॉम आउटसाइडर्स, जो भारत में आके जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करके धीरे धीरे ले लिया, वो अपना कर लिया और यहाँ के लोगों को सब परेशान दुख देके या उनकी सारी सदियों पुरानी, सेंचुरीज ओल्ड सारी की सारी चीज़ें, संस्कृति नष्ट करके और उनका मेहनत का बनाया हुआ इतना बड़ा देश, उसकी ज़मीन लेना, राजाओं की वेल्थ यानी धन दौलत लेना, और जो कहीं नहीं मिल रहा हो वो चीज़ भारत से ले लेनी, यानी नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो केशवानंद जी ने मुझे इतिहास बताया भारत का, बंगाल का, वो कहीं नहीं सुना मैंने। सबसे पहले ये बात है कि कोई भी भारत की भूमि अगर हम देखते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऋषि पहले आके तपस्या करके गए, फिर वो वहाँ पे समृद्धि हो जाती है। तो 2 खास ऋषि हैं जिन्होंने बंगाल में तप किया, एक है भृगु महर्षि, एक है पुलस्त्य। और वो जो देश है, यानी पहले सब जिसको हम ट्राइबल्स बोलते हैं, कि जो अपने अपने छोटे छोटे जगहों में रह रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, उनकी अपनी संस्कृति थी और वो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो गोंड ट्राइब है, वो उनकी पेंटिंग में सिर्फ चिड़िया, पक्षी और जानवर आते, और वहाँ पे मधुबनी में राम लक्ष्मण सीता, राम सीता, सीता, बस यही आता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसका जो
सबसे पहली बात है कि जो इसका ओरिजिनल जो पहले का नाम पड़ा वो वांग देश था, यानी वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को वांग यानी कोई ट्राइब होगी या वंग होगा, आई डोंट नो, वो है। और विश्व की तीन ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, फर्स्ट लैंग्वेज वाज तमिल with its script, second was Bengali, and third was Sanskrit. And the sweetest language in this whole world is Bengali. तभी कहते हैं मेरा बंगाल, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इतनी मधुर भाषा कोई भी नहीं है। और आपको पता है जब 2 साल पहले ये बांग्लादेश में जब उथल पुथल हुई है तो माँ ढाकेश्वरी ने मुझे दर्शन दिए कि यहाँ तो भृगु आया था, और जिस तरह जनमानस की हत्याएं कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे तो भारत वापस आना है। तो इसका अर्थ क्या है आप सब जानते हैं। और कल जो हमने ये देखा कि वो जो नक्शा स्वामी जी ने अपने हाथ से बना के पता नहीं कौन से साल में गए, अपने हाथ से स्केच करके गए अखंड भारत का, और जिसके ऊपर लिखा था वंदे मातरम। तो ये क्यों लिखा होगा? ये कुछ अपनी निशानी छोड़ गए कि कभी कोई आएगा इसको देखेगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो कहानी है, नॉवल था आनंद मठ, उसके ऊपर एक मूवी बनी है, आनंद मठ ही है। तो सब सोचते हैं कि वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है, पर स्वयं बंकिम चंद्र जी ने कहा कि मुझे तो केशवानंद ने बताया कि तुम ये लिखो। और वंदे मातरम इसका मतलब केशवानंद जी को संस्कृत आती थी, क्योंकि ये संस्कृत में, बंगाली में नहीं लिखा है। तो वो जो हमने एक स्लैब देखा जो सालों से ढूंढ रही हूँ और कल मिला है, और ये हम पौंडीचेरी 2024 में गए हैं, बुक शॉप में गए हैं, एक छोटी सी बुकलेट देखी है अरबिंदो जी की जिसमें लिखा है बंकिम ऋषि। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को ऋषि बुलाया। और बंकिम चंद्र जी ने मुझे कहा था ये सब मेरे माइंड में आई है, यानी उनकी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, उनका नाम आए, नाम से मतलब नहीं है, पर इसका मतलब केशवानंद जी उनको गाइड कर रहे थे। तो कि ये वंदे मातरम, ये भूमि जो है वो पूजनीय है, क्योंकि उनका स्वयं का संकल्प 1 करोड़ वर्ष पहले यही था कि हे प्रभु, मुझे तो ये मातृभूमि बहुत पसंद है। अब वो कितना अच्छा इसका बताते हैं कि देखो, जो भूमि मुझे जन्म देती है, जो भूमि मुझे खाना देती है, जो भूमि मुझे जल देती है, और जो भूमि मुझे सुरक्षित रखती है, तो मैं तो वो ही मेरी जननी है, वो ही मेरी माँ है। मैं अपना संसार नहीं बनाऊंगा, बस ये धरती मात्र ही मेरी, यही मेरी मात्र है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिर में उनकी माता जी चली गई, तो उनसे ये शायद चौथा यानी 4th डेथ देखी थी, तो उन्होंने कहा था नहीं अब मैं नहीं, ऐसे कुछ बात हुई होगी। तो ये बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सब हम जाने, संसार जाने, जो इतिहास गलत लिखा है। और वो ये कहते हैं कि 1857 में जो म्यूटनी हुई है वो इंडिया की फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है। ये गलत है। ये केशवानंद जी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ बंगाल है। तो वो फर्स्ट पर्सन है जिनको
प्रणाम दिया। वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कहा कि ये धरती मेरी माता है, जो हम वसुधा मतलब वसुधा को माँ बोलते, माँ है हमारे। और तीसरी बात जो आप बता रही हूँ मैं आपको, कि वो पहले पहले थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है। तो वो जो सन्यासी रिबेलियन है उसको वो कहते हैं हमने रिबेल, हमने उसका विरोध नहीं किया था। यानी हम भारतीय थे, हम सन्यासी थे, हम अपने देश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। यानी पहले ज़माने में तीर्थ के लिए जो ज़मींदार थे, राजा थे या जो भी इस तरह के जिनके पास धन होता था, वो लोग इनको सहारा देते थे, पैसे देते थे या उनके गांव से जाते थे, यानी टोली बना के जाते थे, ट्रूप्स में जाते थे। अब जैसे आज के ज़माने में तो बहुत आसान है, उस समय अगर बद्रीनाथ या उस समय बद्रीनाथ नहीं जाते थे ये लोग, हिंदू कुश भी जाते थे, बहुत कठिन होता था हिंदू कुश, बहुत मुश्किल है वहाँ जाना। तो जो रास्ते में जाते थे तो यहाँ ये एक रास्ता था जो ये बताते देयर वाज अ रूट, जैसे सिल्क ट्रेड रूट है, बाकी ट्रेड रूट है, तो ये यात्राओं के भी फिक्स, क्योंकि पैरों से जाते थे, चलते थे, तो पथ थे, उनके फुटप्रिंट्स थे। तो वो कहते हैं कि हमसे अंग्रेज़ों ने टैक्स मांगा तो उन्होंने मना किया। और इस जीवन की जो सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी जब ये मैंने किताब बनाई थी, कि जो मैंने बताया कि वो योगी थे, तो एक दिन वो एक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को, लेट इवनिंग, शाम को वो ध्यान कर रहे थे। बंगाल, सेम मुर्शिदाबाद, 12:30 के ऐसे ऐसे कुछ उम्र थी उनकी, बहुत छोटे थे। और क्योंकि इतने जन्मों में उन्होंने प्राणायाम कर लिया और इतना तेज था उनके अंदर, इतनी फायर, अग्नि भी हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल, उनकी प्राणों की प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे वो प्राणायाम कर रहे थे, अपना ध्यान कर रहे थे, और उनके मन में एक विचार, वन सेंटेंस, ही स्पोक वन सेंटेंस, कि इतनी ऊर्जा, इतनी अग्नि मेरे अंदर हो गई है, और मैं चाहूँ तो या ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी अग्नि से ये जंगल ही जल जाए, यानी फॉरेस्ट फायर हो सकती है। अब छोटा बालक है, वो अपनी शक्तियों को देख रहा है या पता नहीं कैसे उन्होंने ये बात कही, तो उनको भगवान ने दर्शन दिए, यानी बोला कि वाई, मतलब क्यों तुम, वाई यू से दैट दिस फायर, यानी ये से जो मेरी शक्ति है उसे ये जंगल जल जाए, तुम मुझे ये शक्ति दे दो, यू गिव इट टू मी। तुम अपनी तप की, बेसिकली ये कह रहे थे ईश्वर उनसे कि ये तपस्या की अग्नि मुझे दे दो और मैं इसको किसी अच्छे काम के लिए लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा ले लीजिए। तो जब ये बड़े हुए, आई थिंक 32 साल में उन्होंने अपना गुरुकुल खोला, और शायद मुश्किल से 23 साल चला वो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन ले ली, उनका गुरुकुल ले लिया और फिर उनको मार दिया। तो उनके जो खास खास शिष्य थे वो, और इनको सबको ख़त्म कर दिया। तो जब वो जा रहे थे, यानी जब वो शरीर उनको, मतलब क्या बोले, उनकी हत्या कर दी ऐसा बोल सकते हैं हम, उनको जान के मार दिया। तो जब उनको मार दिया था तो ऐसा वो जो एकदम प्रिसाइज बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जब मेरे प्राण छूट रहे थे, यानी वो, क्योंकि उनका खाना पानी जीना ऐसे सब खत्म कर दिया था, तो वो इतने फायरी थे, इतना उनमें प्राण की ऊर्जा थी, तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती गई। और जो उनके दूसरे शिष्य प्रत्युष, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे,
वो उनसे थोड़े यंग थे और स्टडी थे। तो उन्होंने इशारे में कहा कि अब मैं जाऊँगा, मैं तेरा गुरु हूँ पर तू अब तैयार हो जा, मेरे को अब जाना है। तो जब वो बताते हैं कि उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे मेरे पैरों से ऐसे-ऐसे करके मेरे आई कुड सी माय प्राण लीविंग मी। तो उनको बहुत रोना आया कि मैं अपने स्वतः स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता अगर ये नॉर्मल होती तो। और मेरा इन्होंने बहुत अपमान किया है, मेरे शिष्यों को मारा है और बहुत सारे सन्यासियों को इन्होंने मैसेकर किया है। तो ये मेरे शरीर को हाथ ना लगाएं। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इनका शरीर भी नहीं देंगे, यानी वो कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं होगा, मर गए जी रहे, ऐसा करके उन्होंने उनका हाल किया था। तो उन्होंने पहले ही सोच लिया, बता दिया था कि मैं अपना शरीर इनको नहीं दूंगा। और मेरा शरीर जब मांगने यानी आए, उनको पता था कि मांगने आएंगे तो ये देंगे नहीं, दोनों ही बात पता थी। तो उन्होंने फिर ये प्रण लिया था कि मेरा तर्पण भी कोई नहीं करेगा, यानी मेरे जो आखिरी संस्कार हैं वो कोई नहीं करेगा। और जहाँ तक मुझे समझ आता है वो कौन थे, वो ब्राह्मण थे। पर जब सब बंगाल में लोगों की ज़मीनें अंग्रेज़ ले रहे थे, नवाब लोग अय्याशी कर रहे थे, तो इनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने माँ काली के सामने, माँ काली के भक्त, परम भक्त थे, तो उन्होंने एक दिन तलवार रख दी, जैसे कोई खीर चढ़ाता है, कुछ ना कुछ फल चढ़ाता है भगवान को, तो उन्होंने तलवार चढ़ाई थी और कुछ लड़कों को तैयार किया और बोल दिया कि अब मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, देश ने मुझे आवाज़ दी है। और घोड़े लेके सब मार्शल आर्ट्स बेसिकली, और इसमें प्रत्युष नंबर 1 थे, यानी नेताजी नंबर 1 थे। तो इन्होंने विद्रोह किया, रिबेल नहीं किया है। उन्होंने कहा हम नहीं आपको एक्सेप्ट करते कि आप हम पे रूल करो और हमारी सब चीज़ ले लो। तो जब उनके प्राण निकल रहे थे तो वो इतने प्यार से बोलते कि मेरा शरीर तप किया हुआ शरीर था, तो कोई दूषित आत्मा मेरे शरीर को नहीं छुएगी। और उनको दुख इस बात का था कि जो मेरा गुरुकुल है, यानी पता नहीं शायद 23 बीघा ज़मीन ऐसे कुछ बताया है उन्होंने, कि धीरे धीरे करके उनके गुरुकुल की ज़मीन ले ली। दुख उनको इस बात का था कि मेरे इतने सारे शिष्यों की हत्या क्यों की, इतने सन्यासियों की क्यों हत्या की। फिर उन्होंने माँ काली को याद किया और कहा कि हे माँ, अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ तो तुम मेरा तर्पण किसी पुण्य आत्मा से कराना, नहीं तो मेरा तर्पण कभी मत करना। तो जब पिछली बार उन्होंने मुझे बुलाया, फिर जो बातें बताई, बल्कि इन्होंने मुझे 2022 में कहा कि तू मेरा तर्पण कर, तूने और ऋषियों का भी किया। तो जो मैं दोबारा कहूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं उनसे 10 सीढ़ी नीचे ही बैठूं, तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ आपका, मैं लायक नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम पिछले जन्म में जयपुर में महारानी थी, तो तुम्हारे पति जो राजा थे वो कलकत्ते गए और वहाँ पे जाके उनको इस सन्यासियों का विरोध, जो उन्होंने विरोध किया था, प्रोटेस्ट की थी उन्होंने, वो खबर लाए कि देखो ऐसा सन्यासियों को मारा जा रहा है। तो वो स्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने पति को कहा कि हमें भी कुछ मदद तो करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत दूर हैं और वो तो मार भी दिए, अब क्या कर सकते हैं। अब वो राज ही कर रहे हैं हम पे, ऐसे सुन रहे हैं कि कहीं कहीं वो राज कर रहे हैं,
तो स्वामी जी बोलते हैं कि तेरे मन में तब से इच्छा है कि मैंने ये काम अधूरा छोड़ा है, तो बोले अब तू आ और मेरा कर। मतलब पिछले जन्म की भावना या ऐसा लगा कि कैसे मार सकते हैं, मतलब हम कभी पीपल पेड़ को नहीं काटते, हम बरगद को नहीं काटते, हम गाय की हत्या नहीं करते, हम तुलसी को कभी उखाड़ते नहीं, हम कभी भी रात को जाके किसी भी सोए हुए पक्षी और पौधे को हाथ नहीं लगाते, तंग नहीं करते, क्योंकि ये हिंसा है और ये पाप माना जाता है। तो जो चीज़ भगवान ने मना की है उसको हम पाप बोलते हैं और हमें पता होनी चाहिए, लोगों को पता भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो घोर पाप हो गया है कि हमने इतने सन्यासियों की हत्याएं की है, तो उस धरती माता को कितना दुख हुआ और हमें माफ़ कौन करेगा। तो ये जो मेरी इस बुक में भी है और इस तरह में ये रिपीटेड मेरे रेफरेंसेस आते हैं किताब में। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी मैंने यही लिखा था कि जो पहलगाम का काम हुआ इतना गंदा, कि हे प्रभु ये मार तो दिए, इतना खून धरती में, तो मातृभूमि हमें श्राप देंगी। हमें डर लगना चाहिए, हमें डर लगना चाहिए कि मातृभूमि हमें श्राप देंगी। तो जब ये बात इन्होंने मुझे 2022 से बताई, जैसे इनके जो सबसे कुछ खास नाम थे भवानी चरण पाठक और ये सब जो आज वापस आ गए, तो जब केशवानंद जी ने मुझे दिखाया दृश्य कि देखो हमें काट दिया गया, हमें मार दिया गया, हमारी लाशें ऐसे पड़ी थी और जान के इतिहास को बदल दिया, तो तुम जाके सबको बताओ कि वापस से इतिहास लिखो और वापस से सबको बताओ कि मैं फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हूँ, बाकी मेरे शिष्य थे जिन्होंने अपनी जानें दी। और जहाँ जहाँ हमारी हत्याएं हुई हैं वहाँ पे बंगाल यानी बंगाल, जो हम उसको बंगाल बोलते हैं, उसने अपने भयानक भविष्य के बीज बो लिए थे। जो हम कहते इतना खराब हो गया बंगाल, इतना खराब हो गया, तो बोले जब तपस्वियों की हत्याएं करोगे, उनको जानवर की तरह काट के धरती पे फेंकोगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। तो बंगाल का जो डाउनफॉल है कई कारणों से हुआ है। मेरी आत्मा आज ऐसे कह रही है कि नहीं, ये इन्होंने उल्टी गंगा खून की बहाई, उसका उनको प्रायश्चित करना चाहिए और ज़रूर बदलाव आएगा। मैं पॉलिटिक्स पे एक वर्ड नहीं बोलूँगी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अलग चीज़ है। जो भगवान का हुक्म, भगवान की ताकत, भगवान की इच्छा, ईश्वर इच्छा से बड़ी इस धरती पे कोई शक्ति नहीं है। तो अगर स्वामी जी ने कहा मेरे बंगाल को उठाओ, तो उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे। अब वो कैसे उठाएंगे, बाकी जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन केशवानंद जी की 8 लाइव्स जो वृंदावन में हुई हैं, उनकी सारी तपस्या कात्यायनी देवी मंदिर में है। और ये शाम को मैं दोबारा बताऊंगी, रिपीट भी करूंगी, ताकि हम ना भूलें और ये 100 जगह जाए ये बात कि उनकी मृत्यु से पहले, यानी उनको मार रहे थे, उनको पता था, उनको जाना है, और एक कोई जीवन का शायद कोई संचित कर्म हो या ईश्वर इच्छा है या तपस्या यही है कि मैं अपने आप को अलाउ कर दूं, क्योंकि उनको भय किसी से, डर तो था ही नहीं, किसी से नहीं डरते थे, वो शेर थे। तभी अगस्त जी ने उनके बारे में कहा, सी दी रोरिंग लायन, मतलब रोरिंग लायन विल अवेक। ये मैं शाम को बताऊंगी कि तुम्हें पता नहीं है केशवानंद जाग गया, तुम्हें पता नहीं है अब वो गर्जना कर रहा है। तो जो हमने वो देखा उनका नरसिंह अवतार देखा गया में, तो वो मुझे पिछले साल जो बुलाए उसके बाद कहा कि मैं जाग गया हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ, मेरी तपस्या की जो शक्ति है मैं भारत को दे रहा हूँ, इसको विश्व गुरु बनाओ, इसको
वापस से क्या बोलते हैं, बंगाल को साफ सुथरा करो और इसको फिर से एक कहते हैं ना सनातन धर्म को वापस लाओ। और ये तुमसे होगा भी नहीं, अकेले तुम लोग से होगा नहीं, हमें आना ही पड़ेगा। हमारी शक्तियाँ ले लो, हमारे साथ मन को जोड़ो और जैसा हम बताते हैं वैसा करो। सो ये जो तर्पण की बात है, अब उसका ये है कि भाई क्यों तर्पण करें, कैसे होगा, वो हम शाम को बताते हैं, वो हम दूसरे सेशन में लेंगे। तो जो स्वामी केशवानंद है उनको ज़रूर सब जाने, और उनको जानने से मतलब ये नहीं है कि हम उनको जैसे लोग बोलते हैं भी बाय हार्ट समझ लें, उनकी मग अप कर लें, ऐसा नहीं है। उनसे उनसे मन को खोलें, उनके लिए मन को खोलें, माने मेरी बात की बात सत्य है, तो हमारा चैनल खुल जाता है और हमसे भगवान कोई ना कोई ऐसा एक्शन करा लेंगे जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है इस महायज्ञ में। हम नहीं, बहुत लोग करेंगे। बंगाल को जो बोल रहे हैं मेरे बंगाल को वापस बनाओ, अब वो बंगाल को बनाओ का मतलब ये है कि उनको ढाकेश्वरी भी चाहिए, उनको भारत को एक करना है, हमारे खोए राज्य भी चाहिए, और साथ में लोगों की धीरे धीरे, यानी जो कुछ लोग हैं जो कभी सुधरने नहीं वाले, जो कभी बदलने नहीं वाले, तो उनका तो फिर वो विनाश कर देंगे। उनको फिर भगवान से प्रार्थना करके कि उनको जन्म ना दो, क्योंकि वो आके सब अच्छे काम को खराब करते हैं। तो जो बुरे लोग हैं उनको रास्ते से हटा देते हैं, यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको हटा दो, हमको तंग, मतलब हमारा काम, असुर होते हैं उनको, और दूसरा शब्द कह सकते हैं तो पता नहीं, बड़े खराब खराब शब्द हैं वो, जो ईश्वर से विमुख होते हैं, यानी उनको भगवान की कोई बात नहीं माननी होती है, उनको सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है, अपना अहंकार सिद्ध करना होता है। तो उन लोगों को वो हटा सकते हैं, जो मुझे कहते हैं कि तेरे सारे रोड़े हर्डल्स में हटा दूंगा, तो बस तू अपना काम कर। वो उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। वो जब ऐसे बस ध्यान लगाएंगे, वो सोचेंगे इसको करना है, वो काम होता ही है, यानी भगवान उनको अपनी शक्ति देते हैं। तो ये एक बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उनका कि स्वामी केशवानंदा कौन थे, और ज़रूर दुनिया इनको जाने। और क्यों नहीं अच्छी फिल्में बनती हैं, कितनी खराब फिल्में बना रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है जो हम कहें कि हमारी संतानें देखें, ये समाज के लिए अच्छा है, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, संसार को वापस बनाते, ऐसा कुछ कुछ देखने को नहीं मिलता है, होता ही नहीं। कोई फिल्म अच्छी नहीं बनती जिसमें ऐसी महान आत्माओं पे कुछ कहा जाए और हम अपने आगे की पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाएं। तो उनका मतलब सिर्फ यही है कि देखो, अपनी पीढ़ी सुधारो, अपने कर्म सुधारो, अपने विचार सुधारो और योग साधना करो, तप करो। तो ये करने से ऐसा सब करेंगे, यानी धीरे धीरे और लोग करेंगे, तो जो जो बुरे लोग हैं, जिनके इतने गंदे गंदे विचार होते हैं, उनको हम काट सकते हैं। बाहर से एक दूसरे से मार काट करनी, युद्ध करना, वॉर्स करनी, ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। तो उनका संसार को बदलने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसे किसी को जाके नहीं कहेंगे आप ये क्यों कर रहे हो, तुमने ये गलत किया, नहीं। और उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो समाज को बदल रही है। लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे बदल रहे हैं, या कैसे अचानक हमको कोई प्रेरणा आती है, या काम बिगड़ा हुआ है अचानक रास्ता मिलता है। कभी कोई सोचता नहीं है कि कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है। क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है कि मैं जिनको जानती नहीं हूँ, वो ऐसे ऐसे महान सत्पुरुष आके पता नहीं कितनी मेरी चीज़ें बना के गए, बिगड़ी सब चीज़ ठीक करके गए। तो अब वो स्वयं आ गया कि देखो वो हम हैं, हमें देखो और दुनिया को हम दिखाएं। तो ये एक जो बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि हम केशवानंद जी के लिए क्या बोलें, कैसे बनाएं इसको। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाह रहे थे कि एक बहुत सुंदर एक शांति से, क्योंकि मेरा प्राणायाम से मन सदा, उनका मन हमेशा कंट्रोल में रहा है।
तो वो इसी अवस्था में चाह रहे थे कि मैं ये उनकी बात संसार को दे दूं कि देखो इतने आपके पास, यानी यू स्टिल हैव एक्सेस, क्योंकि ये जाते भी नहीं है, ये जाते नहीं है, ये अमर होते। तो ये जो बात कही मैंने, इस पे हम चाहे तो विराम कर सकते हैं। और डिटेल ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि हमको किताब पढ़नी चाहिए, वो एग्जैक्ट तो वही है। तो उनका जो बंगाल से कनेक्शन है, मेन यही है कि कैसे वो 58 टाइम्स 58 टाइम्स आए, और लास्ट वाला भी वही है। और मैंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की है, भगवान मतलब एक वो चाहते हैं कि देख तू जा यमुना पे जा, तेरी प्रार्थना भगवान सारी सुनते हैं, कोई भी तू प्रार्थना करती है तुझे कभी ना नहीं होती, तो तू यमुना जा और वहाँ मेरी प्रार्थना, मेरी 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 दरखास्त लेके जा। तो आज मेरी भगवान से दरखास्त है कि जहाँ पे उनका पहला जन्म था, मुर्शिदाबाद बना दिया, वो धनबाद था, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्मारक ज़रूर बनाए, क्योंकि वो उनका पहला जन्म है। जैसे और ऋषियों का पहला जन्म बता दिया कि देखो ये इनका पहला जन्म था। हमने आदि शंकराचार्य जी का पहला जन्म देखा, मैंने मार्कंडेय जी का देखा, मेरा अपना मैंने देखा, औरों के भी कई देखे मैंने। मेरा बहुत मन 4-5 दिन से ऐसे तिल-मिल बोल रहे ना, मैं आई हूँ कि मैं क्या मांगूं भगवान से, क्या करूं इनके लिए, इतना झोली क्या, भंडारा क्या, क्या बोलूं, कितना दिया है। कल जो हम वहाँ देख के आए, जो उनका कमरा और ये जहाँ वो चले, आप लोग बोल रहे हैं हमें उनकी फोटो अच्छी लगी, उनकी वो वस्तु अच्छी लगी, मुझे उनकी आवाज गूंज रही थी। आवाज कैसी हुई होगी, क्या आवाज थी उनकी, जैसे किसी से बात करते होंगे, बंगाली में बोल रहे, जौल लेके आओ, कैसे होंगे। फिर किसी को संस्कृत सिखाई, मंत्र सिखाए, इतना मंत्र जाप करते, इतनी पूजा पाठ करते, इतना ध्यान करते, कानों में ना रेजोनेट हो रहा है। जैसे हम जाते हैं अपनी माँ के घर, नहीं है तो लगता है ना ऐसे बात की यहाँ होंगी, यहाँ, ऐसा कल मेरे को लग रहा था कि उनको पता है इसका इतना मन करता है, हम इसको बुलाए नहीं कभी। मतलब उन्होंने मुझे आप शुरू से कहे तुझे गुरु की क्या जरूरत है, जो मुझे दुख होता है कि मैंने साक्षात गुरु ही नहीं देखा अभी तक। तो सब ने कहा तुझे जरूरत नहीं, तुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तू हमसे वैसे ही जुड़ी हुई है। और उन्होंने कल अनुभव भी ऐसे दिया कि देख मैं हूं ना, इधर गया किधर हूं ना। तो वो कल जो उनकी ऐसे थे, ऐसे लग रहा था कमंडलू पड़ा है, और मुझे पता था शेर की खाल तो पक्की होगी और मिली। मुझे लग रहा था शायद कमरे में होगी, नहीं दिखाएंगे। कल सब देखा, अखंड ज्योत देखी, भारत का नक्शा देखा, माँ काली देखी, क्या नहीं देखा, सारा स्वर्ग देखा हमने। तो कितना भी दूंगी दुनिया को कम है, क्योंकि जितना मिला है, अक्षय पात्र भी देख लिया, हाँ सब देख लिया मैंने, दुनिया की सब चीज देख ली। पर कल जो देखा है वो इतना है कि आंसू भी नहीं आ सकते, बोल भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकते। पर एक प्रार्थना कर सकती हूँ मैं कि हे भगवान, जहाँ उनका मुर्शिदाबाद में जन्म हुआ था वहाँ पे ज़रूर एक स्मारक होना चाहिए। कल हमने कितने सारी पादुका देखी, उनके लिए कुछ भी नहीं, और सब जगह हत्याएं, खून, लोगों को मार के अपनी स्थापना कैसे कर सकते। कोई भी हो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी धर्म मानो, मानवता नहीं है तो मानव नहीं हो। कोई तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, मैं नहीं मान सकती अगर तुम बोलते हो कि हत्या करके धर्म का पालन होता है। तुम सन्यासियों को मारते हो, साधुओं को मारते हो, फिर जाके अपना धर्म स्थल बनाते हो, कैसे हो सकता है। किसी को बर्बाद करके आज तक कोई आबाद नहीं हुआ है और नहीं होगा। हमारी प्रार्थना इतनी पावरफुल है, होगा। तो जहाँ इनको मारा वहाँ एक स्मारक होना चाहिए,
और जहाँ इनका पहला जन्म हुआ, इनफैक्ट वो बोलते हैं ऐसा कि जो मेरा पहला जन्म स्थान था वहीं मुझे मारा गया, इसलिए मेरे को तर्पण तू ही कर, मेरा तर्पण तू कर। तो वहाँ पे स्मारक बनना चाहिए। और जहाँ पे उनके शिष्य प्रत्युष यानी नेताजी भी थे, वहीं उनको भी मारा, वहाँ भी होना चाहिए। और ज़रूर होगा, चाहे 1 करोड़ वर्ष लगे लगे। और जहाँ जहाँ इन लोगों ने खून खून एक एक बूंद लोगों की जो कि इतने निर्दोष थे, वहाँ पे हर बूंद पे एक वृक्ष होना चाहिए। तुमको सिर्फ मारना आता है तो हमें जीवन देना आता है, हम जीवन देंगे, तुमको मारना है तुम मारो, क्योंकि तुम सुधरने वाले भी नहीं हो। क्या बोले हम ऐसे लोगों को जिनको ये नहीं समझ आता कि जो लाखों वर्ष की तपस्या करते हैं उनके पैरों में पड़ते हैं, उनको मारा नहीं जाता है, उनके स्मारक बनते हैं, उनकी समाधियाँ बनती हैं, लाखों वर्ष तक उधर दीप जलने चाहिए। अपना नाम करके तो क्या, अपना नाम कर रहे हैं, सब खत्म करते हैं और फिर अपना नाम डाल देते। अपना नाम डालने से क्या होएगा? तुम्हारा तो अता पता ही नहीं है अगला जन्म भगवान दे तुम्हें कि ना दे। तुम हो कौन, मैं कौन हूँ? हम तो है ही नहीं। सो जो उनकी पीड़ा थी, जो उन्होंने मुझे बताई, कि मैं शाम को बताऊंगी कि उनके आखिरी टाइम में उनकी पीड़ा कितनी असहनीय थी उनको, क्योंकि जो इतना निर्मल हो, जो सारे विश्व को इतना प्रेम करता हो, उसको तुम मारोगे तो तुम तो कभी भी आबाद नहीं होगे, तुमको तो कभी भी भगवान अच्छा जीवन नहीं देंगे। ठीक है, तुम्हारा कर्म तुम जानो, पर उनके लिए कुछ बनना और बनेंगे, जरूर बनना ही होगा शायद। इसीलिए मुझे ऐसा मन में विचार आ रहा है कि नहीं प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर सकी आपके लिए, ना मेरी कोई इतनी हस्ती है कि मैं कुछ करूं। और वो समय बदल गया। और ये ज़्यादा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि जब वो केशवानंद जी बन के आए, यानी जो उनका पिछला जन्म था, कल मैंने आपको मंदिर में बाद में बताया कि देखो अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने मिल के उनकी सारी ज़मीन ले ली और उनको मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका इरादा सिर्फ ये था कि इनकी ज़मीनें कैसे हड़पी जाए, ये कर रहे थे। ऊपर से हम कितना भी कुछ लेप लगाएं, बातें करें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। वो लूटने आए थे, वो चोरी करने आए थे, वो आक्रमण करने आए थे। तो उनका आई थिंक 32 बीघा ऐसा कुछ बताते हैं, आश्रम ले लिया। और आश्रम का जो एक दृश्य दिखाया मुझे, यानी जिन जिन भारतीयों को इन्होंने मारा, तो मार के उनके आश्रम में वो लाशें रखी। यानी उनको दुख ये कि मेरी काली माँ के सामने नरसंहार कैसे किया। तो जो भी वो पुण्य आत्माएं हैं जिनको इस तरह मारा गया, जिनकी अकाल मृत्यु हुई, उनकी प्रार्थना के लिए। और आज मेरे मन में आया कि प्रभु कुछ ऐसा करूं मैं। हालांकि भगवान ने उनको अच्छा जन्म दिया होगा, पर वो भूमि, मातृभूमि जिनको हमने खून से लथपथ कर दिया, उसका वो श्राप कैसे जाए और वो वापस अच्छी साफ सुथरी कैसे हो, वो भगवान कराएंगे। कभी कुछ हुआ तो, मौका मिला तो। और स्वामी जी का तर्पण वो तो एकदम ही अलग तरह से करवाएंगे। जो बोला नहीं तेरे हाथ, बोले कि नहीं तेरे हाथ से ही करूँगा। और कैसे करेंगे वो शाम को बताऊंगी। बहुत ही अद्भुत बात है उनकी। और
ये संसार को मालूम पड़ना चाहिए कि हम जो एक गहरी नींद, एक गहरी तंद्रा, निद्रा, मदहोशी, ओवर कॉन्फिडेंस में जो जी रहे हैं, कभी थोड़ा समय देके सोचना भी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे सबका क्या भला हुआ, अच्छा हुआ, और गलती हुई तो उसका सुधार करना चाहिए। तो बंगाल को बहुत तरह से बहुत लोग उठाना चाहते हैं, या बहुत लोग हैं जो उसको जैसा है वैसा रखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनका सिर्फ फ़ायदा है, सिर्फ फ़ायदा देख रहे, अपना निजी स्वार्थ हटाएं, फिर देखें। और मेरे से जो बन रहा है मैं वो करूँगी। कल हम ज़रूर जाएंगे और हम अच्छा संकल्प लेंगे, और आज शाम को मैं जाऊंगी और उनसे ही प्रार्थना करूंगी, भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि इनको जैसे मैंने उनसे पूछा आपको तर्पण कराने की ज़रूरत क्या, आप तो मुक्त हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो जो हमने कल परसों आजकल एक दो बात हुई है कि सोल हैज़ मेमोरी, तो वो कहते हैं मेरी आत्मा भूलती नहीं, यानी उनकी सोल मेमोरी है। यानी इतने महान तपस्वी को तुमने इस तरह मारा, तो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो उनको याद है। तो वो कहते हैं कि मैं उससे अगर मुक्त हो जाऊंगा तो मैं भारत के लिए और काम करूंगा। यानी भारत के जो अच्छे लोग हैं या विश्व के अच्छे लोग हैं जो भारत को उठाना चाहते हैं, उनको वो अपनी शक्ति देंगे। तो उनका तर्पण कराने का ये अर्थ है कि मुझे फ्री कर दो तो मेरे पास और शक्ति होगी। तो इसे बहुत अति शुभ संकल्प से मैं ये वाला सत्संग ख़त्म करती हूँ, और शाम को बाकी की बात बोलूँगी। और 5 मिनट हम लोग शांति में बैठेंगे और एक अच्छा सा कुछ ओम ओम के ऊपर ध्यान करते हैं 5 मिनट। और ये जगह अच्छी है, हम अच्छी सी एक प्रार्थना और एक अच्छा सा संकल्प छोड़ के जाते हैं, और बाकी के बहुत अच्छे अच्छे संकल्प शाम को स्वामी जी के चरणों में जाके करेंगे। और भी किसी को अच्छे अच्छे आएंगे, वहाँ ज़रूर अपनी बात मन की करना, और सब मिल के करेंगे तो बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी।